Hi, I'm Gagan Kapoor. I'm a marketing consultant and a corporate trainer. And today I am with Rajat Luthra, who's the director of Lifestyle Foods and the spices brand Chakte. Welcome, Rajat. Thank you. Right. Just to tell a bit more about Rajat, Rajat is a seasoned exporter, a management graduate, 22 years of experience in the industry. Along with that, he's also an angel investor. On a personal note, he is a movie buff. And I also know that not only he takes care of his business, but he also ensures that many new budding entrepreneurs also keep getting that light of the day. So welcome once again, Rajat. Thank you so Right. much. Rajat, let's start from the start. Tell me about your early days, your how your career started, how you originated into this particular world. So, Gaganji, thank you so much for inviting me here. As you might not know, but I was born in a business family. So, business जो है ना वो हम लोगों का बचपन में ही स्टार्ट हो गया. बचपन में ही we used to see our father talking about business, living business. Every time for him it was work. So, जब उनसे हम बात करते थे, उनको सुनते थे, उनको देखते थे, we used to learn from there only. एंड आई स्टिल रिमेंबर स्कूल की हॉलीडेज होती थी आफ्टर 10th क्लास समर वेकेशंस. डैड को बोलते थे पॉकेट मनी तो दे दो, तो वो कहते थे बेटा ऐसे नहीं मिलती, कुछ काम करो. सो वी स्टार्टेड गोइंग टू वर्क उस टाइम पर फॉर पॉकेट मनी. एंड आई स्टिल रिमेंबर 12th के बोर्ड्स खत्म हुए, बोर्ड के एग्जाम्स थे, तो उसके बाद तो हर स्टूडेंट का होता है कि भैया आराम करो, काम वाम नहीं करना. तो मेरे फादर ने कहा बेटा पॉकेट मनी चाहिए तो सुबह 5 बजे उठ के काम पे जाना पड़ेगा, 5 o'clock. एंड थिंक एक 12th का स्टूडेंट सुबह 5 बजे उठ के काम पे जा रहा है, वरना पॉकेट मनी नहीं मिलेगी. सो दैट्स हाउ दैट बिजनेस का कीड़ा गॉट इन टू मी. But then I did my graduation from Indore, I did my BBA, then I did my master's from IMT Ghaziabad. And my father was very clear, you have to be on the other side of the chair before a business mein ghuso. All right. And I was lucky enough. I happened to got a job with Airtel, which is Bharti Cellular. I worked in Bombay for a year. After a year, that itch was always there कि नहीं business करना है, कुछ अपना create करना है. So after a year I came back home to Delhi. And आने के बाद I asked dad कि वापस तो आ गया, अब करना क्या है. So my dad had a side hustle where he used to export Indian groceries. And I came in 2003 and started taking care of that business. All right. While I will definitely come to your brand, Chakte, but before that, I want to just talk a bit more on the personal side. And I also know that there is no gain without pain, right? What were some of your early struggles which actually gave you life lessons? Yes, struggles are part of every business and everybody's life. Not just business, everywhere. Everybody goes through struggles. Only difficult part is उसको accept करना. Yes. So हमारे केस में when I came into business, as I said, डैड का साइड हसल था. 1 साल मैंने उस पर पहले सीखा करा. एंड देन 2004 आई पैक्ड माई बैग्स. एंड उस टाइम पे ना गूगल इतना पॉपुलर था, ना ट्रैवल वेबसाइट्स थी, ना इंटरनेशनल रोमिंग के फ़ोन्स थे. एंड आई पैक्ड माई बैग्स फॉर 60 days, वेंट टू US एंड कैनेडा with some 40 kgs of luggage on my backs. शॉप टू शॉप गया, लोगों से मिला, डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, स्पोक टू देम कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, इंडियन ग्रोसरीज में डील करता हूँ. 2 months आई डिड दैट. केम बैक होम, ज़ीरो बिजनेस. आई डेंट गेट एनी न्यू कन्वर्जन्स. काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, बहुत परेशान रहा कि यार इतना खर्चा करके वापस आ गया, फादर क्या कहेंगे, खर्चा ही कर रहा है, कमा तो रहा नहीं. 6 months later, 3 months later, I went to Middle East, so Saudi, Bahrain, Oman, Dubai, ये मार्केट कवर करी. आई वॉज देयर फॉर अबाउट 20 days. बहुत पैशनेटली गया कि अब तो कुछ करके ही आऊँगा. वापस आया, अगेन ज़ीरो बिजनेस. दैट वॉज अ टाइम आई वॉज डिप्रेस्ड कि शायद आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था कि मैं बिज़नेस करूँगा, कुछ क्रिएट करूँगा, ये मेरे बस की नहीं है. ऑलमोस्ट 1.5 years हो चुका था एंड आई वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग कि मेरे से हो ही नहीं रहा है. सेल्स तो आती नहीं मुझे, सेल्स करते कैसे हैं. एंड देन बहुत परेशान था. एक दिन तो पापा के पास जाके बैठा और उनको बोला यार ये मेरे से हो तो रहा नहीं है, गलत काम में डाल दिया है. जॉब ही अच्छी थी, सैलरी तो आती थी. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नुकसान ही तो हुआ है, यहीं से कमाया है, यहीं पे लौटाएंगे, चिंता क्यों करता है. तो मैंने कहा ठीक है अब क्या करना है. कहता है फिर ट्राई कर. इस बार मैं फिर गया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड.
दिस वॉज अनदर 30 days ट्रिप. वहाँ जाके मैंने अगेन बहुत धक्के खाए, बहुत शॉप्स पे गया, होलसेलर्स पर गया, एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल. वहाँ जाके मुझे एट लास्ट आई फाउंड few new customers जो conversions हुए. In fact there were exactly 2 new conversions I had in that trip. जब मैं वापस आया I was so excited. I made the first profit, I made the first business जो मैंने खुद create किया, जो मेरे डैड के अलावा था. And that was a time I learned a lesson. एक businessman की जेब में अगर 1 रुपया डाल दो ना, उसका confidence 1 करोड़ का होता है. Yes. 1 रुपये का नहीं होता. So वो turning point था when I got this confidence कि अब कुछ करके दिखाएंगे, पीछे नहीं पलटेंगे. That's how the whole thing changed. Wonderful. So Rajat, after talking about your personal life and the way you started, and it was very inspiring to hear that how you failed, tried, and then found success, right? I want to ask you a question. You spoke about exporting, right? And today we have this brand Chakde, right, which is now known as a well-known spices brand. My question to you is, why spices? Spices ही क्यों? So, when I was in early days of my business, I was traveling, I was meeting people, talking to them. And as I said, we were into exports of Indian groceries. We were just doing trading of Indian groceries. And at that time, when I was talking to a lot of people, they always asked me, आप क्या अलग करते हो? ये तो कोई भी दे देगा. आप में ऐसा क्या है कि जो मुझे किसी और से नहीं मिलेगा? तो आई थॉट कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा वेयर वी हैव अ स्पेशलाइजेशन कि यार ये चीज़ हमारी मास्टरी है, ग्रोसरीज आर पार्ट ऑफ इट. सो कुछ ना कुछ मास्टरी बिल्ड करनी पड़ेगी, सब कुछ ना कुछ करना है. सो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग फ्यू प्रोडक्ट्स. इट इज़ नॉट जस्ट स्पाइसेस, आई हैड फ्यू कैटेगरीज इन माई हेड. उस टाइम पर दालें मेरे दिमाग में थी कि विल डू पल्सेस. वी थॉट राइस इज़ वेरी बिग फ्रॉम इंडिया, लेट्स डू राइस. थर्ड आई थॉट ऑफ स्पाइसेस. देन आई डिड अ लिटिल रिसर्च एंड आई रियलाइज्ड India is a bigger consumer of pulses than the exporter. We were actually net importers of pulses. So Indian government कभी भी इस डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम में दालों का एक्सपोर्ट बैन कर देती है. तो मैंने कहा इसमें जाने का फ़ायदा ही नहीं, आज एक्सपेरिमेंट करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा और ये बैन हो गया तो मैं क्या करूँगा. देन आई थॉट ऑफ राइस. व्हेन आई गॉट इनटू राइस आई रियलाइज इसमें तो लोगों के पास मार्जिन ही नहीं है. लोग उस टाइम पर 2004 में 50 पैसे 1 रुपये किलो पे काम करते थे. तो मैंने कहा यार 1 रुपये किलो पे काम कैसे करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे और इन लोगों के आगे जिनकी डीप पॉकेट्स हैं. देन थर्ड कैटेगरी वॉज स्पाइसेस. देन आई रियलाइज इंडिया वॉज फेमस फॉर स्पाइसेस. इंडिया इज़ द बाउल ऑफ स्पाइसेस फॉर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया को स्पाइसेस हम देते हैं. सो ये प्रोडक्ट तो बैन नहीं होने वाला. सो दैट वॉज द रीज़न आई थॉट कि लेट्स ट्राई समथिंग ऑन स्पाइसेस. आई स्टार्टेड पिचिंग स्पाइसेस टू फ्यू ऑफ माई कस्टमर्स एंड समहाउ आई वॉज लकी. I got few orders. उसके बाद से it was no looking back कि अब spices को ही अपना main forte बनाना है. Alright. So I want to now talk about the origin of the brand Chakde. Today we see it as a successful brand, but I want to talk about the early days of Chakde, right? And I'm sure it wouldn't have been an easy ride. बहुत लोगों को लगता है कि आज इतना ऐसा brand है और हमेशा से ऐसा रहा होगा. But I'm sure there is a story behind it. I would like to hear that. बहुत पुरानी कहावत है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तो वो कहते हैं कि सामने वाले की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो कुछ तो बढ़िया ही चल रहा होगा. बट ऐसा नहीं होता है. आई रियलाइज इट आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ वर्किंग कि हर स्टोरी की शुरुआत ना स्ट्रगल से ही होती है और चैलेंजेस और फेलियर से होते हैं. सो ऑब्वियसली चकदे वी स्टार्टेड इन 2012 जनवरी. आई स्टिल रिमेंबर. तब हमने लॉन्च किया. We had no background on distribution. Okay. No idea on कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होता है, कैसे सेल्स टीम रखी जाती है. No idea on SOPs ऑफ सेल्स टीम. ये भी नहीं पता था हमें कि करना कैसे है. बस लॉन्च तो करने की तैयारी कर ली थी. एंड दैट फेज ऑफ फर्स्ट 6 years was so hectic for us, कहने की बात नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना था, पता नहीं कैसे करते हैं. सेल्स टीम गलत हायर हो रही है, ठीक हायर हो रही है, पता नहीं है. उनके खर्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं, पता नहीं. सो लर्निंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन, लर्निंग दैट कि हम किस तरह से सेटअप करेंगे वॉज लॉट ऑफ चैलेंज फॉर अस इन इनिशियल डेज. चैलेंज वॉज सो बिग दैट वी वर ब्लीडिंग ऑन इट. वी वर डूइंग लॉसेज ऑन चकदे फॉर सो मेनी ईयर्स. आई स्टिल रिमेंबर एक हमारे ट्रेड इंडस्ट्री के फ्रेंड थे, उनसे हमने पूछा कि हमने जाके बेचना चकदे कैसे करें, क्योंकि हमारे कंपटीशन में जो जितने भी स्पाइस प्लेयर्स हैं दे वर गिविंग ह्यूज क्रेडिट्स इन द मार्केट. वो इतना उधार देते हैं कहने की हद नहीं. और हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे बिकॉज वी स्टार्टेड दिस कंपनी. कोई बैकग्राउंड से तो पैसा था नहीं, तो कहाँ से करते क्या करते.
तो उसने बोला कि जिस दिन उधार दोगे ना उस दिन कलेक्शन एजेंसी बन जाओगे, बिजनेस रन नहीं करोगे, ब्रांड नहीं बना पाओगे। अगर ब्रांड बनाना है ना तो एडवांस पे बेचना है। अब वो बात उनकी ना मेरे दिमाग में घर कर गई कि बनाना तो ब्रांड है, सिर्फ बिजनेस नहीं है, बनाना तो ब्रांड है। जब ब्रांड बनाना है तो एडवांस बेचेंगे। एंड दैट डे आई थॉट कि नहीं, बेचेंगे तो सब एडवांस में। अब एडवांस में तो बेचने जब गए तो ट्रेड ने बोला कि भैया मार्जिन भी तो फालतू दो। सो एनी स्पाइस प्लेयर वॉज इन द मार्केट, हमें उनसे ज़्यादा मार्जिन ट्रेड को देने पड़े। हमें उनको और एक्स्ट्रा देना पड़ा बिकॉज हम कैश पे बेच रहे थे, हम उधार नहीं दे रहे थे। जब इतना मार्जिन ट्रेड में जा रहा था तो एंड सेल्स टीम पे इतना एक्सपेंस हो रहा था, तो रादर देन मेकिंग प्रॉफिट वी वर लूजिंग। एंड दिस वेंट ऑन फॉर लॉन्ग ईयर्स, ये 5-6 साल तक चलता रहा। वी वर स्ट्रगलिंग, कस्टमर वॉज नॉट कमिंग बैक टू अस खरीदने के लिए बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थे, मार्केटिंग बजट्स नहीं थे, और मार्केटिंग आती भी नहीं थी, सच्ची बात तो ये है। तो मार्केटिंग बजट्स नहीं, पैसे नहीं, ट्रेड को मार्जिन फालतू देना है। अब कस्टमर आएगा क्यों? जब तक वो ट्राई नहीं करेगा, जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा घर ले जाके, तब तक तो वो वापस आके पूछेगा भी नहीं हमारे बारे में। तो कंसिस्टेंटली मार्केट को एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट से फीड करना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया फॉर 6 years फॉर अस। एंड आई स्टिल रिमेंबर 2017 we were sitting at about a family of about 400 people in this group. उस टाइम पे हमारे पास 2 फैक्ट्रीज चल रही थी, 2 वेयरहाउस चल रहे थे। एंड आई वॉज विद माई फादर एंड ब्रदर। उनको मैंने बोला मेरे से काम नहीं संभल रहा, हम लॉस करते जा रहे हैं, मुझे लगता है वी शुड टेक अ ब्रेक, क्लोज इट डाउन एंड रीथिंक जो हमने किया आज तक वो ठीक किया या नहीं किया। अगर ये ऐसा चलता रहा, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन वील बी ऑन द बैंक्रप्सी। हम उस स्टेज पर आ गए कि मुझे अपनी बैंक्रप्सी दिखने लग गई थी, दिमाग चलना बंद हो गया था। आई वॉज वर्किंग 70 hours a week। आजकल वो कल्चर चला है कितने आवर्स अ वीक कर रहे हो, मतलब आई वॉज लाइक कि थोड़े से और मिल जाए तो मैं और कर लूँगा, बस मुझे बचाना है इसको और किसी तरह से इसको ब्रांड बनाना है। क्योंकि मैंने पूरा दिल लगा दिया था, हम लोगों ने पूरे पैसे लगा दिए थे, वी वर हार्ट एंड सोल इनसाइड इट। But yes, it was a struggle phase, and first 6 years was a big challenge for us in Jagde. So tell me more about it. Now that you've spoken about your struggles, and I know that 2018 and around that time was an inflection point for the brand itself, right? What happened? What steps did you take at that time, which actually made you the brand which you are today? So in 2018, early 2018, actually I came across few business coaches and mentors, and तब तक ना मुझे उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता था कि व्हाट इज़ अ बिजनेस कोच, व्हाट इज़ अ मेंटोर, हाउ विल ही हेल्प मी। अब मुझे लगता था ये कोच और मेंटोर ना इज़ ओनली फॉर द स्पोर्ट्स पीपल। सचिन तेंदुलकर को कोच चाहिए, विराट कोहली को कोच चाहिए, मुझे कोई कोच चाहिए। और अगर कोई कोच आ भी गया तो वो मुझे क्या सिखाएगा मेरे ट्रेड के बारे में, जिसको मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, उसको मेरी इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं। बट दैट वॉज माई मिस्टेक। When I met these coaches, I realized सचिन तेंदुलकर का कोच सचिन तेंदुलकर से अच्छा नहीं खेलता, विराट कोहली का कोच विराट कोहली से अच्छा नहीं खेलता, बट वो उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेता है जो वो खुद नहीं कर पाते। व्हेन दे आर इन द गेम दे डोंट नो कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। सो सेम वे व्हेन वी आर इन द बिजनेस वी कुडंट फाइंड कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। सो व्हेन आई मेट दीज कोचेज एंड मेंटोर्स, उन्होंने मेरे को बहुत हैंड होल्ड किया, हेल्प करी, एंड आफ्टर दैट the whole journey changed for us, and we realized कि learning and skills was really important to grow this business. So this is a very small example I'll give you. मैं आपसे एक कंपनी का नाम पूछता हूँ, tell me the first name which comes to your head. ठीक है? टाटा। Vision, people. नहीं, पर्सन नेम, एक नाम कौन सा दिमाग में आता है? Ratan Tata. रतन टाटा। Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Facebook, Mark Zuckerberg. okay. Tell me the second name in Amazon. I would not know. That was a time I realized कि the person at the top has to grow. अगर मैं ग्रो कर गया अपनी लाइफ में तो मेरी कंपनी ग्रो कर जाएगी, एंड मेरी कंपनी उतना ही ग्रो करेगी जितना मैं ग्रो करूँगा। अब मैं कैसे ग्रो करूँगा? इट इज़ प्योरली द स्किल डेवलपमेंट और माई नॉलेज, जो कि मैंने कॉलेज के बाद पढ़ना लिखना छोड़ दिया। इंजॉय कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ स्किल डेवलपमेंट नहीं था। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। आई रियलाइज कि आई हैव टू अपग्रेड माई सेल्फ, अपग्रेड विद द पीपल अराउंड मी।
जो ये जेन जी आ रही है, अगर इनके साथ नहीं सोचूंगा तो मैं तो कहाँ रह जाऊंगा. सो आई स्टार्टेड स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग विद दीज कोचेस. लर्निंग कर्व स्टार्टेड इन माई लाइफ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, my company started growing. So that was a turning point for the company. Wonderful. As we say that a person grows up to the level of their inefficiency, and if at that point of time you could really take a step forward to take it forward, I think that really is a wonderful thing. And I see that how you have evolved yourself over a period of time, and it just clearly shows in the times which have happened now, right? So Rajat, I want to now take another step. You spoke about initially कि मार्केटिंग की हमारी कमी थी, नीदर वी हैड दैट काइंड ऑफ फंड्स कि हम उस हिसाब से कर सकते हैं. एंड एक जो चैलेंजर ब्रांड होता है उसके लिए हमेशा कभी भी उतने पैसे नहीं आ सकते कि वो एक बहुत बड़े ब्रांड को उस लेवल पे मार्केटिंग के ऊपर में बीट कर सके, राइट? तो उनको कहीं ना कहीं इनोवेटिव होना ही पड़ता है कि क्या चीज़ पे बात करें, क्या चीज़ से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें जिससे कि हम नोटिस हो जाएं, राइट? तो आई एम श्योर ऐसा भी कुछ आपने किया होगा जिससे कि सडनली आप लोग अपने कस्टमर्स की या नए कस्टमर्स की लाइमलाइट में आ गए. ऐसा कुछ था? ओ यस, बिल्कुल था. और इसके बिना कुछ होता भी नहीं है. सी, बड़े ब्रांड्स के पास एक सबसे फ़ायदा ये है कि उनके पास बहुत सारी डीप पॉकेट्स हैं, पैसा है, विच दे कैन स्प्लर्ज एवरीवेयर. हम लोगों के पास नहीं था. फॉर एनी न्यू स्टार्टअप उनके पास पैसा नहीं होता कि दे कैन स्प्लर्ज ऑन मार्केटिंग एंड डू दैट. बट आई थिंक एक एडवांटेज होता है एक छोटे प्लेयर के पास, एक छोटे ब्रांड के पास, वो उसका हसल, कि मुझे सरवाइव करना है और मुझे कुछ करके दिखाना है. वो चैलेंज कि मेरे पास नहीं है तो भी मैं कैसे क्रिएट करूं. तो वी ऑल्सो हैड दैट हसल कि ब्रांड तो बनाना है, अब पैसा नहीं है तो नहीं है, उसके ऊपर रो नहीं सकते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और सोचते हैं. सो एज अ कल्चर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन हम सबके सब मार्केट ज़रूर जाते हैं. एवरीबडी यूज टू टॉक टू पीपल, कंज्यूमर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सबसे मिलना करना रहता था. उनसे पूछते थे कि आप ये स्पाइसेस का ब्रांड ले रहे हो, ये वाला क्यों नहीं ले रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, चकदे ब्रांड क्यों नहीं चूज़ कर रहे ओवर द अदर ब्रांड्स. तो जब हमने कस्टमर से बात करी ना, तो हमें बहुत सारी इंसाइट्स वहाँ से मिली. हम लोगों ने बहुत पहले बात करनी स्टार्ट करी सेफ्टी कि हमारे मसाले सेफ़ होने चाहिए, सब होना चाहिए. बट कस्टमर को सेफ्टी वर्ड समझ ही नहीं आया. तो कोविड ने सबको सिखा दिया कि सेफ्टी क्या होती है. उससे पहले तो क्या बैक्टीरिया और क्या वायरस, वही ढाबे पे खड़े होके गंदे गंदे हाथों से खाना खाते थे, हाथ धोते भी नहीं थे. तो हमने वो स्टार्टेड थिंकिंग लॉन्ग बैक कि हमें सेफ करना है, बट हम कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे. एंड आई फील मार्केटिंग में ना कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, तो आपका मार्केटिंग फेल है. तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे समझ आया कि यार इनको समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन क्लियर ही नहीं है. तो मैंने उनसे पूछा आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपको क्यों डर लग रहा है चकदे खरीदने से. सो मैंने उनका जब पेन पॉइंट समझा तो मुझे समझ आया उनको ये डर लगता था कि ये पैकेट हम घर लेके जाएंगे और जो मैं ढूंढ रहा हूँ इस प्रोडक्ट में, जो वैल्यू ढूंढ रहा हूँ मुझे नहीं मिली, तो मेरे लिए तो पैसे वेस्ट हो गए, दुकानदार वापस नहीं लेगा. अब ये सब सोच रहे थे. देन एक हमारे और इंडस्ट्री में देयर इज़ अ वेरी बिग ब्रांड कॉल्ड डोमिनोज पिज़्ज़ा, आपने शायद सुना होगा. व्हेन दे केम इनटू इंडिया, उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया जो किसी ने नहीं किया इंडस्ट्री में, विच वाज 30 मिनट्स डिलीवरी और फ्री पिज़्ज़ा. ना तो वो ये कहते हैं कि हम टेस्टी हैं, ना तो ये कहते हैं हम गर्म अच्छे हैं, ना तो ये कहते हैं हम हेल्दी हैं. वो कहते हैं हॉट पिज़्ज़ा इन 30 मिनट्स और फ्री. तो कस्टमर ने इतना ज़बरदस्त उसको प्रेफर किया कि 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा तो मिलता है ना, एम्बुलेंस आए ना आए पिज़्ज़ा आ जाता है हमारा इन बैक अर्ली डेज. तो मैंने कहा ऐसा कोई बोल्ड प्रॉमिस करना है कस्टमर को कि भैया चकदे आपको वो प्रॉमिस दे रहा है कि आपको टेंशन नहीं है घर जाके. वहाँ से हमें वो आइडिया क्लिक किया. हमारा फर्स्ट मार्केटिंग कैंपेन बना साफ नहीं तो पैसा नहीं. सो वी टोल्ड आवर कस्टमर्स आप पैकेट घर लेके जाओ, घर ले जाके आप इसको यूज़ करो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलेगी 100% मनी बैक ऑफर है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. अब जब ये मैंने बोला तो ऑब्वियसली पूरी कंपनी में हलचल मच गई. स्पेशली प्रोडक्शन वाले तो टेंशन में आ गए, सर आप क्या बोल रहे हो, एक भी गड़बड़ हो गई हमें लोग लूट लेंगे, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, हमारे को लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, मार्केट में लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे. बट एज अ कंपनी वी वर रेडी टू पुट आवर नेक ऑन द लाइन कि देखा जाएगा. अगर कस्टमर को वैल्यू नहीं मिल रहा ना चकदे में, तो इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू टेक मनी फ्रॉम देम. अगर मैं उससे पैसे ले रहा हूँ ना तो उसको उतनी वैल्यू देनी है. सो हम लोगों ने अपने पैकेट्स के ऊपर बिग एंड बोल्ड प्रिंट कर दिया, साफ नहीं तो पैसा नहीं, एंड अदरवाइज 100% मनी बैक.
And that was the biggest success we had in the marketing campaign initially. Everybody jumped onto it. Slowly, gradually, we evolved. Recently, we have tied up with Karishma Kapoor as a brand ambassador. We brought her on board. And uske baad, for the blends, also we have launched a new campaign, Swad Ka Karishma, where we're talking about Swad now through Karishma Kapoor. That's Swad Ka Karishma. So there has been evolution in marketing campaign. But yes, the first one was the biggest hit, which was Saaf Nahi To Paisa Nahi. So Rajat, very interestingly, the way you spoke about "Saaf nahi to paisa nahi," and I can see how it would have made an impact. I want to talk a bit more about it. पहली बात, ये क्लेम इतना आसान नहीं है करना, राइट? जब तक आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास ना हो. पहले थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं. थोड़ा सा मुझे बताइए कि बैक एंड पे आपने क्या किया होगा जिसकी वजह से ये क्लेम आप कर पाए. So I'll tell you, we as a company were always very focused on our production capabilities. जब हमने 2012 में चकदे को स्टार्ट किया था ना, उससे पहले भी हम लोग स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे थे. एंड वी रियलाइज्ड कि जो एक्सपोर्ट हो रहे थे स्पाइसेस, दे वर फार प्रीमियम देन व्हाट वाज बीइंग सोल्ड इन इंडिया. एंड जब हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वी ऑलवेज रियलाइज, एक बड़ी पुरानी कहावत थी कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता. तो हमारे थॉट प्रोसेस बिफोर इवन मेकिंग चकदे वाज देयर कि मसाले वो बनाएंगे जो अपने घर ले जाके अपने बच्चों को खिला सके. देयर वाज अ सिंपल रूल इन द फैक्ट्री कि अगर कोई मसाला क्लीन करते वक्त ज़मीन पर गिर गया, इट विल बी डिस्कार्डेड. उसको हम फेंक देंगे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, वो यूज़ नहीं हो सकता. क्योंकि उसी फर्श पे हम लोग चलते हैं, हम शूज़ पहन के जाते हैं, तो वो हम उठा के नहीं करेंगे. एंड हमने बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी ऑन मशीनरीज. We were the first company in North India who had the first sterilization unit. We were the first company in North India who had a spices के लिए we had a Sotix plant. Sotix plant cleaning कोई भी यूज़ नहीं करता spices में. We got into it. Our facility जो हमारी है अभी सोनीपत में, that was audited by US FDA and approved that we can, we are on a green list for US exports. Super. And they came from US to do an audit for our factory. Indian norms के हिसाब से नहीं, हमने वहाँ के हिसाब से उसको क्रिएट करा इंफ्रा को. एंड दैट्स वेयर वी थॉट कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट में हम क्या अलग कर रहे हैं, व्हाट इज़ द यूएसपी वी हैव. आवर यूएसपी वाज ऑलवेज कि हमें सबसे क्लीन, सबसे साफ, बैक्टीरिया फ्री स्पाइस क्रिएट करना है. एंड दैट स्टरलाइजेशन थिंग की वजह से हम सेफ्टी सोचते थे, बट सेफ्टी कम्युनिकेट नहीं हो पा रही थी. तो वी थॉट ऑफ साफ नहीं. एंड एवरीबडी गेव देयर नेक ऑन द लाइन कि सर प्रॉमिस करते हैं, हमारी पूरी टीम इकट्ठी हुई कि प्रॉब्लम आएंगी तो सब मिल के खड़े होंगे. आई वुड नॉट से चैलेंजेस नहीं आए, चैलेंजेस हर जगह पर आते, बट वी वर डूइंग अ ब्लास्ट विद द कैंपेन एंड वी हैड अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ इट. So now I talk about the impact. Every good campaign like this, and there is once in a while campaign which can actually produce these kind of wonders. क्या impact मिला, क्या आपको benefit मिला इस campaign से? So there were few of them. I'll talk from the perspective of a distributor, trade partner. डिस्ट्रीब्यूटर जब हम बनाने जा रहे थे तो वो कहता था ये लोकल प्लेयर आ गए हैं मसाले के, पता नहीं कब तक रहेंगे, भाग जाएंगे, मार्केट में कंप्लेंट आएगी, इसके कौन जिम्मेदारी लेगा, एक्सपायरी होगा, रिटर्न लेंगे नहीं लेंगे. जब हमने ये बोला साफ़ नहीं तो पैसा नहीं, सो ही कुड गो टू द शॉपकीपर एंड से कि भाई अगर तेरे को प्रॉब्लम आएगी तो पैसा वापस ले लियो ना, कंपनी दे रही है. तुमने मेरे से ख़रीदा एट योर परचेज प्राइस और कंपनी पैसा वापस किस पे कर रही है, MRP पे. इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता. अगर प्रोडक्ट ख़राब निकला तो आपको तो आपका प्रॉफिट मिल रहा है MRP पे और आपको बेचना भी नहीं है प्रोडक्ट, सिर्फ कंपनी भेज दो, पैसे ले लो. डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फिडेंस हाई हो गया. सेकंड वाज द रिटेलर. अब रिटेलर के पास उसको डर होता है कि मेरा कस्टमर है, आपको पता है हर लोकेलिटी में एक शॉप है, उस शॉप के ना 200-300 फैमिलीज होती हैं जो बड़ी लॉयल होती हैं, उसके आसपास करती हैं, उसको फ़ोन करके ऑर्डर लिखवा देती हैं कि राम जनरल स्टोर है तो भैया मेरे को ये हल्दी भेज दो, जीरा भेज दो, सौंफ भेज दो, विश्वास पे. अगर मैंने ये प्रोडक्ट वहाँ भेजा और उस कस्टमर ने कहा कि घटिया है, तो यार एक कस्टमर मेरा ख़राब हो जाएगा, ये ब्रांड तो भाग जाएगा. तो हमने वहाँ पे भी उसको प्रॉमिस किया कि भाई अगर कस्टमर नाराज़ होगा तो कस्टमर को क्या बोल रहे हो, 100% मनी बैक है, चिंता ही नहीं है किसी बात की, आपका प्रॉफिट आपको मिला, कस्टमर के पैसे उसको वापस मिले. थर्ड वॉज द कंज्यूमर, जिसको हमने बोला कि आप बेझिझक होकर घर लेके जाओ, इफ़ यू हैव एनी चैलेंज, खोलने के बाद भी, बंद पैकेट नहीं, खोलने के बाद भी कुछ गड़बड़ निकली, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वील गिव यू द मनी बैक. तो वहाँ पे हमें तीनों का कॉन्फिडेंस मिला. एंड सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे दिखा
टर्न अराउंड देखा अपनी सेल्स टीम में. उनका कॉन्फिडेंस चेंज हो गया व्हेन दे स्टार्टेड गोइंग प्राउडली इन द मार्केट एंड सेइंग कि भैया हमारा प्रोडक्ट तो वर्ल्ड क्लास है, कंपनी गारंटी देती है, अगर खराब निकला तो पैसे ले लो, कोई चैलेंज नहीं है हमारे प्रोडक्ट में. तो उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो गया मार्केट में कि वो इतनी अच्छी तरह से लोगों को पिच कर पा रहे थे कि वी सॉ अ ह्यूज जंप इन आवर सेल्स. इन फर्स्ट 6 months we saw a 37% growth in sales in just first 6 months. We saw new retailers being added. In those first 6 months we could add about 11,000 new retailers. Onboarding करी हम लोगों ने just with this campaign. So वो हमें बहुत बड़ा jump मिला. So आपने अभी टीम के बारे में बात करी and I can see that this jump, this sales boost would have definitely boosted the morale of the team as well. And I also know that जब कोई कंपनी आगे बढ़ती है, इस तरह की सेल्स निकाल के लाती है, तो वो चीज़ कभी भी एक बिजनेस ओनर खुद नहीं कर सकता. उसको टीम चाहिए, एक अच्छी टीम चाहिए, एक एफिशिएंट टीम चाहिए. सो आई वांट टू टॉक अबाउट योर टीम, हाउ एंड व्हाट यू हैव डन to make sure that you have a good team, and what kind of values have you set in them? So we certainly feel एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना उसका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ इट इज़ नॉट द राइट कल्चर ना, द कंपनी विल नेवर ग्रो, द ब्रांड विल नॉट बी मेड. ब्रांड इज मेड बाय द पीपल हु आर देयर इन द ब्रांड, एंड पीपल विल बी देयर बिकॉज ऑफ द कल्चर. सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वी हैड 3 बेसिक प्रिंसिपल्स जिसको हम बड़े पक्के थे. 1, वी आर अ फैमिली ओरिएंटेड कंपनी. वी वर वेरी सिंपल. हमेशा अपनी टीम के साथ उसके दुख सुख में खड़े रहे. प्रॉब्लम है तो उसके साथ हैं, खुश है तो उसके साथ हैं. एंड सेम वॉज रेसिप्रोकेटेड बाय द टीम एज वेल. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. कोविड आया, सबको पता है लॉकडाउन हो गया. लॉकडाउन हुआ, सब बंद हो गया, तो हम भी परेशान, सब परेशान. टीम को ये लग रहा था कि अब कैसे होगा, सैलरीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी, घर कैसे चलेगा, ऑफिस बंद है, फैक्ट्री बंद है, सब हो गया. एंड आई स्टिल रिमेंबर अबाउट 1 week डाउन द लाइन, कोविड अभी स्टार्ट ही हुआ था, लॉकडाउन पहला लगा था. सो मी, माई फादर एंड माई ब्रदर, हम लोगों ने एक जूम कॉल करी. वी कॉल्ड अप ऑल ऑफ आवर टीम मेम्बर्स एंड टोल्ड देम कि चिंता मत करो, प्रॉमिस कर रहे हैं किसी की भी सैलरी नहीं कटेगी. वी प्रॉमिस देम जब तक हम बैठे हैं आपका कोई नुकसान नहीं होगा, घबराना नहीं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में कोई चैलेंज हो तो हम बैठे हैं. तो पहले उनको ये प्रॉमिस किया. जब हमने ये प्रॉमिस किया तो हमने देखा हमारी टीम भी बड़ी हमारे साथ खड़ी हुई इस प्रॉब्लम में. वी वर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम, पैसा नहीं था, कैश फ्लो बंद था. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोगों ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे, सो ऑब्वियसली पीपल कुडंट गो टू वर्क, दे वर एट होम. वो लोग घर से कॉलिंग कर रहे थे रिटेलर्स को. माई सेल्स टीम विच वॉज at that time about 120-130 people on the field force, general trade में, they used to call up every single retailer and take orders on the phone. कि हमें सर ऑर्डर चाहिए है, आपको कुछ सामान चाहिए मिलेगा. रोज़ की 100 कॉल्स कर रहे हैं, टेली कॉलर्स बन गए सारे सेल्स वाले, ऑर्डर्स ले रहे थे और ऑर्डर्स लेके डिस्ट्रीब्यूटर को लिखवा रहे थे. फिर डिस्ट्रीब्यूटर से फॉलो कर रहे थे, सामान सप्लाई हुआ नहीं हुआ, सप्लाई हुआ नहीं हुआ. सो जितना एफिशिएंटली हमारी प्रोडक्शन टीम ने भी रिस्क लेके जाके काम किया, उतनी एफिशिएंटली हमारी सेल्स टीम ने भी घर से बैठ के काम किया. बिकॉज दे ऑल्सो न्यू कि अगर हमें भी सर्वाइव करना है तो ये कंपनी तो चलेगी तो ही सर्वाइव करेंगे. एंड दे पुट देयर हार्ट एंड सोल. सो दैट फैमिली ओरिएंटेड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सेकेंड इज द लर्निंग. मेरे लिए आफ्टर 2018 लर्निंग बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड द सेम थिंग हमारे दिमाग में थी फॉर आवर टीम. आई ऑलवेज न्यू हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. हमने खुद का स्किल डेवलपमेंट कर लिया, बट अगर हमारी टीम का स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे. बिकॉज इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, इट वाज नेवर अ वन पर्सन्स एफर्ट. सो हमने उस टाइम पर वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन लर्निंग्स, स्किल डेवलपमेंट्स, ट्रेनिंग्स फॉर आवर टीम. अब वी आर एन SME, देयर आर लॉट ऑफ SMEs इन द मार्केट. हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सुनते हैं, लोग बातें करते हैं कि टीम को ट्रेन करो. एक बहुत पुरानी सेइंग है कि टीम को ट्रेन नहीं करोगे तो गधे रह जाएंगे, घोड़े चले जाएंगे. फिर किसी ने बोला कि आप तो ट्रेनिंग सेंटर बना दोगे, गधों को घोड़े बनाओगे और घोड़े चले जाएंगे, तो करोगे क्या? इट्स अ वेरी चिकन एंड एग स्टोरी कि हैन एंड चिकन सॉरी स्टोरी कि किसको क्या करना है पता ही नहीं है. बट हम लोगों ने सोचा ऐसा नहीं होने वाला.
करना है तो करना है, ट्रेनिंग करनी है तो करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो ही हम ग्रो करेंगे. We as an SME have a special allocation of a budget of training and development in our HR department, which they are accountable for कि हमें कितनी trainings करनी है और कैसे skill development करना है. And not just the skill development, we have trainings for health, Wonderful. we have trainings for financial literacy, we have trainings for कई लोगों को चाहिए होता है कि हम पतले कैसे हो, तो उसकी भी ट्रेनिंग करवाई हम लोगों ने. लाइफ कोचिंग्स, वी हैड पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन लाइफ्स, हमने उनके लिए लाइफ कोचिंग भी अरेंज करके दी. कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स, ईमेल एटिकेट्स वर्कशॉप, ये सब हमने अरेंज करी अपनी टीम के लिए सो दैट दे कुड अपग्रेड देयर स्किल्स. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. सेल्स ट्रेनिंग्स होती हैं, सेल्स के लिए कैसे सेल्स कॉल्स करनी है, कैसे डेमोज करने हैं, वो सब करा हमने और अभी भी करते हैं. वी हैव अ स्पेशल बजट फॉर इट. In fact, we have a dedicated sales trainer in the organization. Wonderful. Training the sales team every day. Every day we have small batches of training happening till date. Every evening we do an online class and daytime we do a on the job training also. Wow, wonderful. So training was very important part of it. And third, we really inculcate a culture जहाँ पे सब लोग जो काम करते हैं they should come and share their achievements. So हमने देखा जब हम ग्रो कर रहे थे तो बहुत सारे टीम्स हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए एंड एवरी डिपार्टमेंट वाज फाइटिंग कि भैया मेरा काम अच्छा है, उसकी गलती है, मैं ठीक कर रहा हूँ, दूसरा तो काम ही नहीं करता. सबको ही लगता था कि मैं तो काम कर रहा हूँ, वो दूसरा वाला कोई काम नहीं कर. सेल्स वालों को लगता है प्रोडक्शन वाले काम नहीं कर रहे, प्रोडक्शन वालों को लगता है सेल्स वाले नहीं कर रहे, HR वाले को लगता है अकाउंट्स वाले नहीं कर रहे, अकाउंट्स वालों को लगता है दूसरा डिपार्टमेंट मार्केटिंग टीम काम नहीं कर रही. सबको ही लगता था. तो हमने कहा ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने ना एक नया कल्चर बिल्ड किया. अब हर डिपार्टमेंट से जब भी लोग आते हैं, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती हैं ना, मीटिंग्स विल स्टार्ट विथ शेयरिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स कि उन्होंने क्या अचीव किया इन दैट लास्ट टेन्योर. अगर मीटिंग 15 दिन में हुई या एक महीने में हुई तो एवरी मंथ दे हैव टू कम एंड स्टार्ट शेयरिंग व्हाट वाज देयर अचीवमेंट. वी कुड सी अ वेरी बिग शिफ्ट इन द पीपल. दे स्टार्टेड थिंकिंग कि ये हम सोच रहे थे कि प्रोडक्शन वाले कुछ कर नहीं रहे, बट प्रोडक्शन वालों ने इतने सारे स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव. सेल्स वालों ने ये सारे स्टेप्स लिए टू इंक्रीज द सेल्स. HR ने ये स्टेप्स उठाए टू हेल्प द एम्प्लॉइज. सो हर डिपार्टमेंट काम कर रहा था, बट वो अंदर ही अंदर सब हो रहा था, बाहर निकल के नहीं आ रहा था. व्हेन दे स्टार्टेड शेयरिंग दिस अचीवमेंट दे गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर ग्रोइंग, एज अ टीम वी आर ग्रोइंग, एज अ फैमिली वी आर ग्रोइंग. सो that is very important for us, and these are the 3 basic cultures which we follow in our organization. Absolutely wonderful. Absolutely wonderful. So Rajat, very, very pleased to understand and see how you have looked at company culture and values in such an amazing way. And this really talks about how you have built the organization. I also understand that is one important factor in any organization's success is the integration of technology, right? Oh, yes. And if you really need to scale up, that is something which you need. So, क्या किया है आपने इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए? कुछ स्टेप्स लिए हैं आपने इसको आगे बढ़ने के लिए? Oh yes, in today's world, technology is really important in every business, every aspect of life, in fact. We were very early adapters of some technologies जो market में आई थी in this kind of trade and business. Initially, the first technology which we adopted was within the organization, where we were managing everything from production to inventory to FG to raw materials and everything. So we shifted to a TCS ERP in our organization. The first reason was we should be able to feed our trade with the product at the right time and fulfill their requirements. अब ह्यूमन इंटरवेंशन पे क्या होता है कि कभी हल्दी ख़त्म हो गई है, कभी जीरा ख़त्म हो गया है, कभी गरम मसाला शॉर्ट है. इस टेक्नोलॉजी के बाद द फर्स्ट थिंग वाज वी इम्प्रूव्ड आवर फिल रेट. वी वर एबल टू मैनेज आवर इन्वेंट्री, वी वर efficiently able to manage our raw materials and packing material. Because of that, one, we could feed the market with fresh product on time and 99% fill rates. Wow. So that was one adaptation what we had. Second, we were very early adapters of Salesforce automation also. I remember 2017 was a time when I was looking at कि क्या करें, किस तरह से हम लोग बड़ा करेंगे इस कंपनी को. Obviously, the big players are like Nestle and Unilever and Dabur. So हम उनको देखते थे कि one day I'm going to make a brand Chak De which will be like a Unilever brand or a Nestle brand. अगर उस तरह का बनना है तो उनकी तरह सोचना भी पड़ेगा.
वी हैव टू थिंक एंड वर्क एज पर देम, देन ओनली उस तरह से बनेंगे. वो लोग ऐसे आज नहीं बन गए. सो दे वर यूजिंग सेल्स फोर्स ऑटोमेशन फॉर लॉन्ग ईयर्स. बट जितने भी SMEs हैं, जितनी भी छोटी कंपनीज थी, इवन इन द स्पाइसेस ट्रेड आई नोटिस्ड nobody was using it. People were still doing पेपर पेन लेके मार्केट में जाते हैं, दुकान से ऑर्डर लेते हैं रजिस्टर में, और फिर वो दुकान पेपर जाके डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं कि आप ये ऑर्डर लिख लो. उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैसे लिखा है, ठीक लिखा है, गलत लिखा है, पता ही नहीं है, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था. सो मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता था. सो 2017 सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का बहुत ट्रेंड आया, बहुत सारी कंपनीज आ रही थी. दैट वाज अ टाइम वी पिक्ड अप अ कंपनी कॉल्ड फील्ड असिस्ट. वी adopted that technology. हमने मैंडेटरी कर दिया अपनी सेल्स टीम के लिए दैट यू हैव टू यूज़ दिस सेल्स फोर्स एप्लीकेशन. वी वर अर्ली मूवर्स, सो चैलेंजेस भी स्टार्टिंग में आए, बट उसका फ़ायदा भी हुआ. टुडे आर एवरी सेल्स पर्सन, एवरी प्रमोटर, एवरी मर्चेंडाइजर mandatorily uses Salesforce automation apps. Wonderful. And because of that, we are able to track them on every day, every hour activities. And we are able to track what is a retailer doing, how is he performing, कौन सा दुकानदार क्या बेच रहा है और कब बेच रहा है. Wonderful. We could even tell कि इस दुकानदार ने पिछली 2 बार से ऑर्डर नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया, तो रीज़न मिल रहा था हमें. एंड उसने हमारे को छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा, तो वो अब तक हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. Absolutely. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड 2017 we got into this. Super. I think these are some signs why a company really grows, and I think scale up strategies में सबसे पहले ये आता है कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को कितना जल्दी इंटीग्रेट कर सकते हैं. Just to add on to it, sorry, recently we have in fact been working on DMS also, where we do a distributor management software implementing, जहाँ पर we can track the inventory level at the distributor also. Wonderful. Though we are still in the initial phase of it, but very soon we'll be rolling it out across all our distributors and super stockists, जहाँ पर हम उनका स्टॉक भी ट्रैक कर पाएंगे कि उनके पास कोई एक्सपायरी तो नहीं है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, कुछ अटक तो नहीं गया जो नहीं बिक रहा. सो वो तक ला रहे हैं हम अपने सिस्टम्स में. वी आर वर्किंग ऑन दैट साइड ऑफ इट. आई नो लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग, बिगर कंपनीज तो करती ही हैं, छोटी कंपनीज में आई कुड हार्डली फाइंड एनीवन डूइंग इट, बट that's what our motto is कि पहले करना है और वो भी करके देना है. I think that's called for a big vision, which is definitely going to take you forward. So one more question. Now, after having understood the importance of technology, I want to go a little back onto your marketing campaign story where you spoke about साफ नहीं तो पैसा नहीं. And one particular thing which you said was that you went to the market, spoke about, checked क्या problem आ रहा है, challenge क्या आ रहा है, and that brings me to the question of identifying customer needs. Yes. Right? So I want to ask you, I want to check with you what level you actually go to really get to understand कि market में चल क्या रहा है. So I'll tell you, as a company, what we do is we always expect कि sales team जाएगी और काम करेगी, ये उनका job profile है. But what about others? So we took a very conscious decision कि सेल्स टीम तो छोड़ो, हम सारे लोग जाएंगे मार्केट में और काम करेंगे एंड टॉक टू कस्टमर्स, टॉक टू रिटेलर्स एंड अंडरस्टैंड उनका चैलेंज क्या है. हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो एक सेल्स का पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, बट हम लोग शायद कर पाएँ. तो एज अ पॉलिसी जितना भी सीनियर मैनेजमेंट है सब मार्केट में जाते हैं. मेरे फादर तक जाते हैं, रिटेल शॉप्स पर जाते हैं फ्रीक्वेंटली एंड जाके कस्टमर से मिलते हैं. हमारे अलावा हमारी अकाउंट्स टीम भी जाती है. Wow. हमारी प्रोडक्शन टीम को भी हमने सेल्स के लिए भेजा फील्ड में कि आप भी जाओ दुकान पे जाके दुकानदार की प्रॉब्लम, कंज्यूमर की प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे करना है वो आप समझ नहीं पाओगे. सो एवरी 3 months, एवरी 6 months वी पिकअप फ्यू पीपल और उनको बोलते हैं आज आपने रिटेलिंग करनी है, पूरा दिन मार्केट जाएंगे और लोगों के साथ बात करेंगे. सो मेरे जो GM अकाउंट्स एंड फाइनेंस है वो भी रिटेलिंग कर चुके हैं, मेरे जो प्रोडक्शन हेड है वो भी रिटेलिंग कर चुके हैं, जो क्लीनिंग सुपरवाइजर है वो भी रिटेलिंग कर चुका है. तो सबको जाना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे कस्टमर को अगर हम खुश नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा. एंड मार्केटिंग में तो कहते ही हैं कस्टमर इज़ द गॉड. सो वो अंडरस्टैंडिंग सब में होनी चाहिए, इसलिए हम ये भी प्रैक्टिस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं यही सच है कि जो आपका जो ये कैंपेन सक्सेसफुल हुआ है, साफ नहीं तो पैसा नहीं, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है कि आप लोगों ने कस्टमर को ऑन ग्राउंड जाके उनके बारे में, उनके चैलेंजेस को नोट किया, एंड नाउ यू सी हाउ पीपल इमीडिएटली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर
campaign for that matter. I think this is really wonderful, and I completely understand how critical it is for you to get to the customers directly, right? So आपने अभी sales team के बारे में बात करी, and I know that with the growing team, with the growing company, your team is growing many folds. In fact, I know that in the past few years it has tremendously grown. And जब टीम ग्रो करती है तो उतने ही चैलेंजेस जो हैं उनकी एफिशिएंसी को लेके आते हैं, उनकी KRAs को लेके आते हैं. तो आई डेफिनेटली वांट टू आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट हाउ डू यू रियली मैनेज योर टीम एफिशिएंसी इन दिस केस? आई नो जैसे जैसे टीम बढ़ रही है चैलेंजेस बढ़ते हैं, बहुत स्ट्रगल्स भी थे. जैसे मैंने पीछे भी कुछ आपको शेयर किया कि फॉर सेल्स टीम वी हायर अ डेडिकेटेड सेल्स ट्रेनर. ट्रेनर की जॉब थी टीम को ट्रेन तो करना है फॉर कंज्यूमर इंसाइट्स, कस्टमर से कैसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, उन सब चीज़ों के लिए भी. आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. हमारे जो प्रमोटर्स और मर्चेंडाइजर्स होते हैं जो मेन स्ट्रीम स्टोर्स, मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में खड़े होते हैं, रिलायंस, वॉलमार्ट, मेट्रो, इन सब स्टोर्स पर, तो उन लोगों को ये तक ट्रेन किया कि आप लोगों को कस्टमर्स के लिए क्या क्या करना है. उन्होंने ऐसी रैपो बिल्ड करी है अपने कस्टमर से. आज की डेट में ऐसे कस्टमर्स हैं जो शॉप पर आने से पहले हमारे प्रमोटर को अपनी लिस्ट व्हाट्सएप करते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, और उस लिस्ट में सिर्फ मसाले नहीं होते, उसके घर के पूरे राशन की लिस्ट होती है. और हमारे प्रमोटर को हमने ये ट्रेन किया कि आपको अगर कस्टमर को जीतना है तो आपने उसके लिए वो भी निकालना है. तो कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रॉली के अंदर उसकी सारी ग्रोसरीज भर के रखता है कस्टमर के आने से पहले कि सर आपके मैंने आटा भी निकाल दिया, दाल भी निकाल दी, चावल भी निकाल दिया, और मसाले चक दे तो निकाल ही दिया. तो इतना हमने कस्टमर को क्लोज किया. सेकेंडली हमारे पास अब बहुत बड़ी टीम है फॉर प्रमोटर्स एंड मर्चेंडाइजर्स. हमने उसको भी बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया. रिसेंटली हमने, जैसे मैंने कहा, हमने करिश्मा कपूर को ऑन बोर्ड किया. वी वर टॉकिंग अबाउट फ्लेवर्स, टेस्ट, अरोमा ऑफ स्पाइसेस, और हमने कैंपेन भी किया स्वाद का करिश्मा. तो कैंपेन तो रन हुआ, सबको बताया स्वाद का करिश्मा. इवन हमारी पैकेजिंग के ऊपर फोटो आई करिश्मा की हर जगह पर, और ये टैगलाइन आई स्वाद का करिश्मा. बट कस्टमर को स्वाद करवाएं कैसे? सो वहाँ पर भी हमने अपनी टीम को यूज़ किया. एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग अबाउट 1000 फूड डेमोज every quarter. Every 90 days we do 1000 demos of food tasting at different places, जहाँ पर कस्टमर के लिए खाना बनता है, उनको फूड टेस्टिंग होती है. कहीं पर चना मसाला, कहीं पर किचन किंग, कहीं पर सांबर मसाला कुक करके रोज़ डेमोस करे जा रहे हैं अक्रॉस दी स्टोर्स, सो दैट सिर्फ बोलने में स्वाद का करिश्मा नहीं है, खा के भी स्वाद का करिश्मा पता चले चकदे में क्या है. तो हमने सेल्स टीम को वहाँ पे भी यूज़ किया. उसके अलावा सेल्स टीम के साथ हमने ये भी इंश्योर किया है जब वो सेल्स फोर्स एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग मार्केट कंपटीशन को भी रेगुलरली चेक करते हैं. सो हमारी टीम मार्केट में जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके MRPs, उनकी ऑफर्स, उनकी प्रमोशंस क्या चल रही हैं, वो भी हमारे फील्ड असिस्ट ऐप में उसको फीड करते रहते हैं. सो सिटिंग हेयर हमें ये पता है कि आज लखनऊ में किस स्पाइस कंपनी ने क्या स्कीम चलाई, और पंजाब लुधियाना में कौन सी मसाले कंपनी क्या ऑफ़र दे रही है. सो जैसे ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई ऑफर्स आई हैं, कोई स्कीम्स आई हैं, वी आर वेरी प्रोएक्टिव टू सपोर्ट आवर सेल्स टीम एंड से कि अच्छा आपके वहाँ पर ये ऑफर चल रही है, आप हमसे उसके लिए काउंटर ऑफर ले लो, सो दैट वो शॉप टूटनी नहीं चाहिए. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेल्स टीम वी वर एबल टू डू दैट कि हर जगह पर अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग ऑफर्स भी रन कर पाए, सो दैट हमारी मार्केट बनी रहे एंड वी कैन ग्रो with the competition also. So ये हमने चीज़ें कुछ करी सेल्स टीम के साथ. In fact, while you were talking about the team and how your team is taking orders from the people, I suddenly recalled of a book which is an epitome of customer service. It's called The Nordstorm Way, right? I could immediately draw parallels that how they started something more than 50 years ago, which is still their North Star, and that is how they have grown to that level. I could immediately see that you are already taking such steps which could really become a wonderful way for you to take it forward. Super. Great to hear that. So Rajat, after talking about technology, after talking about people, their efficiency, the kind of marketing campaigns you've run, or even the turnaround story which you spoke after 2018, right? Where do you think Chakde is at this point? Where do you think the brand, or what do you think the brand has achieved? So I'll tell you the biggest pride I have after being in business for 22 years and with Chakde is
that we are a team of 1200 plus people and their families associated with this group. We have a blessings of those 1200 people in this group. So that is one biggest feeling of achievement I have in my life, that we are able to support them. Secondly, in terms of our infrastructure, now we have 3 manufacturing units in Sonipat, Haryana, one in Rajasthan, Nagaur. We have 2 warehouses, one in Delhi, one in Bombay for our exports business also, which we are managing. We have in general trade, we are more than 500 distributors, 29 super stockists present across 8 states now. In modern trade, we're there in North India as well as eastern part of India. We almost present with every big mainstream stores right now. If you talk about the e-commerce, quick commerce, which is really in these days, we have pan-India presence with bigger companies like Blinkit and Zepto. We're there. We are present in the government retail also, with supplying to CPC and CRPF and CSD canteens. There also we do pan-India supplies. We have our team spread across India, sales team, which handle this business, and we are present with all these government stores, canteens as well. So that's the infra what we have built in last 12 years. From the physical infra, the team, and the network of sales what we have built in last 12 years. Besides this, we are exporting to 33 countries right now. Wonderful. And we are a 2-star export house as well, recognized by the government of India. That's where we stand right now. Super. So what you mean to say is that the Chakde brand is being showcased and displayed in other parts of the world? Oh yes. So Chakde is now, as a brand also, is being exported to about 9 countries now. Wonderful. And there are people distributing Chakde in Thailand, in Nepal, in Hong Kong, in Japan, in Sweden, US, Canada. We have already started entering these countries. In Africa, we are there. So we are expanding every quarter. We are adding a new country now. That's been the next target, that every year we want to add 4 new countries to our kitty with the Chakde distribution, and keep on adding more and more to it. That is absolutely wonderful, and I'm very glad that this is something which we've achieved, and so far I would call it as in a 12 years is not a very long brand journey, so to say, and if you manage to achieve this kind of a thing, I think that is absolutely fabulous. So a different question this time, right? We've spoken a lot about so many accolades around Chakde and how what you have done. I want to take it back to your personal belief system, right? And I know that all of this, what has been achieved, growing the teams, the turnarounds, the failures, is not possible. Is not possible just because you are doing certain things right in the business. I believe that it comes from heart and soul, right? So tell me, what are your personal beliefs about how you should grow, or your organization should grow, or what all things do you personally put in that? See, personal belief systems is really important to me also. My biggest belief is that any growth or any success will only come if you have a clear, defined vision. So I have a very defined vision board. Wonderful. मेरे घर पर, मेरे ऑफिस में, हर जगह पर मेरा एक विजन बोर्ड बना हुआ है कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट ईयर, 2 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, क्या करना है. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपने कहाँ जाना है, तो आप वहाँ कभी पहुँचोगे नहीं. दिस वॉज अ वेरी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई गॉट फ्रॉम अ मेंटोर. उसने मुझे बात सिखाई थी. कहता है, आप स्टेशन पर गए और आपने बोला टिकट काउंटर पे जाके कि मुझे ना एक टिकट दे दो, तो आपको टिकट मिल जाएगी? तो मैंने कहा नहीं मिलेगी. कहता है क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैंने ये बताया नहीं जाना कहाँ है. तो कहता है यस. कहता है आपको अगर मान लीजिए जाना है लखनऊ, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे एक लखनऊ की टिकट दे दो. ओके. कहता है फिर टिकट मिल जाएगी? मैंने कहा हाँ. कहता नहीं मिलेगी. कहता आपने ये बताया नहीं कब जाना है? मैंने कहा हाँ, ये भी नहीं बोला. तो उसने बोला कि आप डेट बोलोगे कि मुझे 10 सितंबर को लखनऊ की टिकट दे दो. कहता है फिर टिकट मिल जाएगी? मैंने कहा हाँ. कहता फिर भी नहीं मिलेगी. कहता आपने बताया नहीं कौन सी ट्रेन से जाना है? मैंने कहा ये तो सोचा ही नहीं. तो उसने बोला आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को शताब्दी की टिकट चाहिए, 10 सितंबर की चाहिए, लखनऊ की चाहिए. कहता मिल जाएगी?
अब मैं भी घबरा गया, बार बार नो कह रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं, आप ही बताओ। तो कहता है अभी भी नहीं मिलेगी। तो कहता है आपको बताना पड़ेगा कि आपको एग्जीक्यूटिव चेयर में जाना है या सेकंड एसी में जाना है या स्लीपर में जाना है, किस में जाना है। मैंने कहा हाँ। कहते जब आप जाते हो तो ये सब सोच के जाते हो। मैंने कहा ये तो सोचना ही पड़ता है कि टिकट कौन सी लेनी है, कौन सी क्लास की लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सी डे। कहता है एक लखनऊ का सफ़र करना है और इतनी प्लानिंग, होटल बुक करके जाते हो, फिक्स करके जाते हो। मैंने कहा हाँ, मीटिंग भी फिक्स करके जाता हूँ मैं तो कहता है जब इतनी प्लानिंग करते हो अपने एक छोटे से सफ़र के लिए, तो ज़िंदगी में कहाँ सफ़र करना है उसकी प्लानिंग करी, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कौन सी क्लास में जाना है। कहते जब तक वो डिफाइन ही नहीं करा तो पहुँचोगे नहीं। इट इज़ लाइक अ एलिस इन द वंडरलैंड कि कूद तो गए हैं। तो एलिस से पूछा वेयर डू यू वांट टू गो, उसने बोला आई डोंट नो। कहता यू विल नीड नोवेयर, अगर कहीं जाना है तो मालूम होना चाहिए। तो विजन बोर्ड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मुझे करना क्या है, कहाँ लेके जाना है। सेकेंड पर्सनल बिलीफ फॉर मी इज़ मैनिफेस्टेशन। मैं ना मूवीज़ का बड़ा शौकीन हूँ। तो एक शाहरुख खान की मूवी आई थी ओम शांति ओम। तो उसमें ना उसने बोला कि किसी चीज़ को इतना दिल से चाहो कि सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाए, शिद्दत से जुट जाए। तो वो दैट्स अ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो मुझे जब कुछ चाहिए होता है ना, तो मैं ये पहले तो ये बिलीफ सिस्टम बनाता हूँ कि ये तो मेरे को मिल गया और ये मेरा है और ये कोई रोक नहीं सकता। अगर मैंने मन बना लिया कि ये मेरे को चाहिए है, तो देयर इज़ नो इफ एंड बट। देन आई डोंट फाइंड एन एक्सक्यूज़ कि वो क्यों नहीं हुआ। आई ओनली फाइंड अ रीज़न कि वो करना कैसे है। जब ये पक्का मन बना लेता हूँ ना, तो मुझे पता है कि रास्ते आसान हो जाते हैं और मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है। सो आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन कि जो मुझे चाहिए वो तो मिल के रहेगा और ये मेरा ही है। सो दैट इज़ सेकेंड पर्सनल बिलीफ मेरा, मैनिफेस्टेशन। थर्ड, आई रियली बिलीव एज अ एंटरप्रेन्योर यू शुड नो कि फेलियर्स तो आते हैं लाइफ में, बट यू शुड बी रेडी टू फेस इट। सी अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर एक चीज़ ये समझ जाओ कि आपका लो पॉइंट क्या है, कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मुझे क्या नुकसान होने वाला है, वर्स क्या होने वाला है। अगर आपको अपना वर्स पता होगा ना, तो देन योर रिस्क एपेटाइट विल गो अप, क्योंकि आपको पता है कि इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंज आए लाइफ में, तो सबसे पहले सोचो अगर ये कुछ गड़बड़ हो गई तो व्हाट इज़ द वर्स इन लाइफ, क्या हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में, सब खत्म हो जाएगा, मैं रोड पर आ जाऊँगा, क्या हो जाएगा। एक बार वर्स सोच लो हर स्टेप का। जब आप वर्स सोच लेते हो ना, तो आपको ना डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है अच्छा यही तो वर्स है, इसके तो बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब आपका डर खत्म हो जाता है ना, देन यू गो आउट एंड डू अ बेटर। सो रिस्क टेकिंग एपेटाइट गोज अप। सो ये तीन चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मुझे लगता है कि इसके बिना लाइफ नहीं चल सकती, नॉट जस्ट बिजनेस, एनीथिंग इन लाइफ। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, विजन, मैनिफेस्टेशन एंड यू शुड नो योर फेलियर्स इन द वर्स। Absolutely wonderful, and I'm definitely going to keep that as up my sleeve to build my vision for that matter. Thank you so much, Rajat, for that. So, Rajat, I've always believed that ask the people who have fallen many times, and they will tell you the wisest stuff, right? Uh, so, I want to ask you now, with so many learnings in so many years since 2004, you have learned so many lessons in life, in business, personally, seeing through the tough times. And I want you to now address the business community and give us certain tips or techniques. I would not say tricks, but I would say tips and techniques. What the community of today, who are passionately looking at either passing through these tough times, or some of them are really doing good, but they really want to scale up, right? What are some of these tips would you like to give it to them? अब आप ट्रेड सीक्रेट पूछ रहे हो मेरा, बट आई स्टिल शेयर। येस, देर आर फ्यू बिजनेस हैक्स विच आई लर्नड, आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीबडी विच दे शुड डू। सी जब हम ग्रो कर रहे थे ना, सो वी ऑलवेज हैड समबडी इन आवर हेड। हमारे कोई ना कोई डिपार्टमेंट वीक होता है। लेट्स से कभी मेरा HR डिपार्टमेंट वीक है, कभी सेल्स टीम वीक है, कभी मार्केटिंग टीम वीक है, कभी प्रोडक्शन टीम वीक है। एंड हम लोग कहते हैं यार हम ये तो हमें आता नहीं है, हमें खुद तो पता ही नहीं कैसे करना है, तो इसको सीखें कैसे, हु विल टीच अस। अब इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है, हु इज़ फार अहेड ऑफ अस, अब वो तो बताएंगे नहीं, दैट्स देयर सीक्रेट। सो मेरे पास ना एक आई हैड अ हैक इन माई स्लीव कि ये सबसे सिंपल तरीका है मेरा करने का।
सो व्हाट आई डू इज़, जब भी मुझे लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में, इस काम में मैं वीक हूँ, नहीं आता मुझे, सो आई टेल माई HR टीम, मुझे ना इस कंपनी का इस सीनियर पोजीशन का आदमी चाहिए, मेरे को इसका इंटरव्यू कराओ, वट एवर सैलरी ही वॉन्ट्स आई विल डू एन इंटरव्यू, उसको ऑफर कर दो, मेरे को मिलवाओ. अब क्या होता है कि लेट्स से आई वांट टू लर्न मार्केटिंग, सो आई विल कॉल समबडी फ्रॉम नेस्ले और डाबर और यूनिलीवर फ्रॉम मार्केटिंग टीम, और उसका इंटरव्यू करते हैं. अब इंटरव्यू उसका नहीं हो रहा होता, वो एक्चुअली मैं उससे सीख रहा होता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं टू डू दैट, टू रीच दैट स्पेस. सो फॉर मी इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और मैं सबको कहूँगा, हर एंटरप्रेन्योर को, कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू वुड नॉट नो. आप कहाँ से सीखोगे? सो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कैसे सीख सकते हो? इट्स द सिंपलेस्ट एंड द चीपेस्ट वे कि उनका इंटरव्यू कर लो फॉर अ जॉब प्रोफाइल, जो भी वो सैलरी ले रहा है डबल ऑफर करो और बोल आ जाओ मिलने के लिए. मिल के उस आधा घंटा 1 घंटा उससे बात करो एंड लर्न एवरीथिंग. सो दैट इज़ वन थिंग आई रियली लव. आई लर्नड इट. सबका मैं आई डू लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ लाइक दिस. मैं इनफैक्ट आज भी हर वीक में कई इंटरव्यूज़ करता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, और इंटरव्यूज़ में चाहे वो सिलेक्ट हो ना हो, मेरे को बहुत सीखने को मिलता है उनसे. आई लर्न फ्रॉम देम, एंड दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट हैक. Okay. सेकेंड थिंग आई लर्न वॉज वॉक विद द जाइंट्स. आई ऑलवेज फील कि जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, चाहे सेम इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री, उनके साथ जब आप बैठते हो ना और उनको सुनते हो ना, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. द वे दे हैव गॉट दैट सक्सेस, उन्होंने भी फेलियर्स देखे हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, बट दे हैव रीच्ड अ प्लेस. टू रीच दैट प्लेस दे ऑल्सो हैव देयर बिजनेस हैक्स. जब आप उनके साथ बैठते हो थोड़ी देर के लिए, व्हेन यू टॉक विद देम, देन यू मीट देम, उनके साथ आप डिनर पे जाते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो आई टेल एवरीवन कि अपने से ऊपर वालों के साथ जाओ, मिलो, घूमो, उनके वेट करनी पड़े वेट करो, बट उनके साथ ज़रूर बैठो, क्योंकि उनसे जो सीखने को मिलेगा ना, जो लेसन्स मिलेंगे ना, वो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने अपने 10 साल 20 साल 30 साल लगा दिए टू मेक दैट स्पेस फॉर देमसेल्व्स. एंड दे विल टेल यू, दे आर सो हम्बल आई हैव सीन, कि वो लोग कुछ छुपाते ही नहीं है, सब बता देते हैं. आई हैव नोटिस दैट. तो मेरे लिए तो इट वॉज अ ब्लेसिंग कि वर्क विद द जाइंट्स. थर्ड ट्रिक विच आई लर्न वॉज कि वर्क आउट ऑफ ऑफिस. सो ये ट्रिक ये थी कि भाई ऑफिस जाते हैं सुबह काम करने के लिए, मॉर्निंग में पहुंच गए 9 o'clock, शाम को 6 बज गए, काम कर रहे हो, बट यू हैव सो मेनी पीपल कमिंग इन फॉर मीटिंग्स एंड एवरीथिंग. सो आपका ना डे टू डे फायर फाइटिंग में दिन निकल जाता है. सो आई मेड इट अ सिंपल पॉलिसी फॉर माई सेल्फ. I still till date I work 2 days out of office where I don't go to office. I sit in a coffee shop or I sit in some other place all by myself and work for the whole day. Wonderful. And I have noticed उस दिन मेरी productivity is 5x. Wow. Whatever I'm doing on a regular day, I'm able to achieve it 5 times on the same day. Wonderful. So that thing I've kept close to my heart. 2 days a week out of office I'll work. मैं generally office अब सिर्फ 2 दिन जाता हूँ week में. 2 दिन I'll do out of office. Otherwise I'm traveling, meeting up clients, meeting up distributors, super stockist. Travel मेरा बहुत होता है, but I still do that 2 days out of office where I sit by myself, work on my numbers, work on my things. क्या मुझे करना है, कैसे करना है, जो मेरा विजन बोर्ड है उसको कैसे पहुंचना है. जब तक मैं सोचूंगा नहीं उसके बारे में, I will not make a way, मैं पहुंचूंगा नहीं. So I give at least 2 days a week on that for myself. Wonderful. So very interesting hacks. I was actually thinking that those will be some of those hacks which we've seen, heard, but these are very interesting ones which actually people can use and get productive for that matter. I can clearly see that, right? And more knowledgeable. This hack of meeting the interviews was really awesome. Super. Okay, so after having known some of these hacks, now what are some of these? What will you advise the new age entrepreneurs who are now moving in? It is a Gen Z time, and the dynamics of the business are changing. The cycles of achieving success are different, of course, depending upon the industry, right? What is the advice would you like to give it to the entrepreneurs? See, whenever a new startup or new entrepreneur comes into this cycle of business and start, so most of them I have noticed या तो कहीं काम कर रहे होते हैं, jobs कर रहे होते हैं, उसके बाद वो business start कर रहे होते हैं. कि the reason of starting a business mostly is कि मुझे independent बनना है, मुझे financially strong बनना है, मुझे ये reasons हैं. And थोड़े time के बाद I start feeling कि जब आप काम करते हो तो because you are the boss, there is nobody above you, so then you become unaccountable. So for every new age entrepreneur, I would say the first
very important thumb rule is you have a boss from day one, and that boss is data. So I tell everybody, data is your new boss. आप अभी भी जॉब कर रहे हो, ये बिजनेस में जॉब कर रहे हो, मे बी एज अ CEO, एज अ फाउंडर, बट यू हैव अ बॉस विच इज कॉल्ड डेटा. सो बिना डेटा के नो डिसीजंस टू बी टेकन इन योर बिजनेस फॉर एनीथिंग. दैट इज वन थंब रूल फॉर एवरी न्यू स्टार्टअप हु शुड फॉलो. Second, I would say, as early as possible, you should get a mentor or a business coach. Those are the people who will keep you accountable. Those are the people who will keep you motivated. Failures आएंगे, थकेंगे, गिरोगे, सब कुछ होगा, बट कोई चाहिए है जो आपको फिर खड़ा करे और फिर धक्का मारे. I was lucky. My father was my pillar of strength. I am lucky. My brother is always there for me. बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल फेलिंग कि 6 महीने 1 साल का तो एंथुजियाज्म होता है, उसके बाद धीरे 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 वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है. सो यू नीड समबडी टू पुश यू. और बिजनेस कोच या मेंटोर क्या करेगा, वो आपको बिजनेस के लिए कोच कर रहा है, सो इट इज़ अ बेटर पुश. फैमिली में आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, गलतियाँ कर रहा हूँ, आपके साथ है, लेकिन जो बिजनेस आइडियाज़ हैं वो बिजनेस कोच देगा. सो एज अर्ली एज पॉसिबल आई वुड से गेट अ मेंटोर, गेट अ बिजनेस कोच. Third, I will always tell them, don't be afraid of failures. Failures आएंगे. Building a brand, making a organization, building a successful company, there's a lot of patience and resilience required. Patience नहीं छोड़नी है. हारेंगे, टूटेंगे, गिरेंगे, बट फिर खड़े होके चलना है. Patience रखनी है. If you have an idea and you feel it is the thing for you, forget about everything. उसको पकड़ के रखना है बस. So I would say for new people should do all these things. Wonderful, wonderful. I can certainly see that you have applied all of these in your business, as I have seen the way you have grown, and now I think these are very, very viable and easily doable things. The way which they can actually do wonders with their business. So Rajat, after having understood some of these business hacks as well as an advice for the entrepreneurs, what you just mentioned, and coming from now running business for over now more than 20 years for that matter, I certainly see that you are very passionate about not only your growth but hundreds of budding entrepreneurs which you have been personally mentoring, right? I want to ask you this question, and at this point of time, India has already seen a level of growth, right? And I see that there is still a lot which India can achieve. So tell me more about it. What do you think, from your vision, from your perspective, what role do you see India is going to play in the global economy? See, India is at a very, very important stage right now. So I'll tell you, India is like a hot chick in a party, where all the countries across the world is looking at it. Okay. India is in a limelight right now. And the reason is we are the biggest pool of talent in the world. The best talent right now is being produced in India. And the reason is our culture in India. We were brought up in a way where we had a lot of struggles when we were growing up. हम लोगों ने बसों में धक्के खाए हैं, सब किया है. सो वी ऑलवेज हैड दैट हसल कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ ग्रो करना है, कुछ पैसा कमाना है या आगे जाना है. सो दैट हसल इज देयर इन इंडिया, एंड दैट इज़ द रीज़न द बेस्ट टैलेंट इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ इंडिया. सो इंडिया को सारी दुनिया देख रही है इस टाइम पर, बट एज एन एंटरप्रेन्योर इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट दिस टैलेंट स्टेज इन इंडिया एंड वर्क्स फॉर इंडिया. अदरवाइज क्या हो रहा है, फॉरेन कंपनीज आती हैं, वो आके बेस्ट टैलेंट को बाहर ले जाते हैं, एंड दे आर ग्रोइंग. लुक एट द टॉप CEOs ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड, एवरीबडी इज एन इंडियन. क्यों? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी वहाँ बेटर मिली. सो वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया सो दैट इंडिया विल बिकम द नंबर 1 डेवलप्ड कंट्री. और वो हो जाएगा. इट इज़ नॉट एट ऑल फार अवे, बिकॉज द टैलेंट जो यहाँ पर है ना, वो कहीं पर भी नहीं है, एंड दोज पीपल आर रियली आइंग. So that's why I said we are right now the hot chick in the party. All right. Thank you so much, Rajat, for these wonderful comments and all what you have spoken about Lifestyle Foods and brand Chakte. So this was Rajat Luthra for you.
And we heard just now, after such a long conversation, that how they, starting from a very humble beginning way back in 2004, learning the tricks of the trade, falling several times, learning again from them, rising up again, and then looking at and bringing in so many aspects into their business, having gone through a tough time with Chakde when they started with it, bleeding, and then looking at coaches, looking at teams, looking at culture, looking at values, looking at innovation, and then on top of it, how frugally looking at innovative campaigns and communication, going deep into the customers, understanding the customer needs, and then seeing what can we do. And it doesn't finish here, right? You saw how they're now giving back to the society. Not only Rajat has done well with the organization, and the way he just spoke about how Chakde has grown over the past few years, and the vision of 2030, which is absolutely fabulous. I also see him now consulting, mentoring, helping so many new budding entrepreneurs without any thought. I know that he is absolutely busy, but the way you have done this, Rajat, this is absolutely wonderful. I see that the brand, the way you have built the brand, the authenticity which you bring into the brand Chakde, I think that is absolutely fabulous. And this same authenticity I see that is in you as well, as a human being, which is not only talking about how the brand has moved, but also talk about how you yourself has grown with the organization, within the organization, and now also helping others grow. Thank you so much, Rajat, for this wonderful insights, I would say, which you have given about yourself personally and your business. And I wish you all the best for future. Thank you so much. And on the parting note, only one thing only I'll say is, picture abhi baki hai mere dost. Yes, absolutely.